Hello, good afternoon students. In the previous video we were studied about the Rutherford's model of an atom. So we studied that in Rutherford's model atom is spherical, maximum part of the or maximum area inside the atom is empty as most of the alpha particle pass to the gold foil without any reflection and very few deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupy very little space, or we can say total positive charge and mass of the atom concentrated in a very small area, that is known as the nucleus. And the third important part is nucleus is very small and it is smaller than the atom, and it is smaller 10 to the power 5 times than the atom. So we can conclude positive charge present in the center of the atom known as the nucleus. Electron revolve around the nucleus in well-defined orbit. The size of the nucleus is very small to compare the size of the atom. So this is the model of the Rutherford model. Drawback of this model, he couldn't explain the stability of the atom. We already discussed all these things. Because electron is a charged particle, so when we revolve around the nucleus, it will radiate according to the Planck's theory. It will radiate energy and finally it collides with the nucleus, and in this way it forms mini Thomson's model. So but we know atom is quite stable, so this theory cannot explain the stability of the atom. After the Rutherford, Bohr gave his model. According to Bohr, only certain specific orbit known as the discrete orbits are allowed for the electrons to revolve around the atom, revolve around the nucleus. तो न्यूक्लियस में कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स की स्पेशलिटी ये होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होती है. तो उस ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ना कोई एनर्जी एब्जॉर्व करता है ना रेडिएट करता है. लेकिन हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करेगा, तो वापस अपनी ऑर्बिट में आएगा, तब वही एब्जॉर्व एनर्जी वो रिलीज करेगा, और ये एनर्जी का अमाउंट उन दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है. तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपनी एनर्जी ऑर्बिट में, जब जिसमें उसकी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ऑर्बिट की एनर्जी बराबर है, वहाँ वो कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. ठीक है. और जो ऑर्बिट्स हैं उनको हम इस फिगर 4.3 में देख रहे हैं. इस तरह के ऑर्बिट जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इनको नेम किया बोर्स ने. फर्स्ट ऑर्बिट n is equal to 1 is known as K shell. Second orbit n is equal to 2 is known as L shell. And third orbit n is equal to 3 is known as M shell. n is equal to 4 N shell. तो अगर आपसे कहा जाए कि 3 सेल्स के साथ आप बोर्स मॉडल बनाइए तो आप KLM बनाएंगे, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ ऑर्बिट्स को ड्रॉ करेंगे, और नंबरिंग भी इनकी अंदर से बाहर की तरफ होती है. सबसे अंदर वाली 1, सबसे आउटर वाली अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा. वन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, एंड देयर नेम्स. Outermost orbit is known as a valence orbit and electron is known as a valence electron. Only this orbit will take part in chemical combination. Other orbits chemical combination में participate नहीं करती. Second last orbit is known as a penultimate shell. Third last orbit is known as a pre-penultimate shell. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि आपको बाहर से अंदर की तरफ इनको नेमिंग करनी होगी. Now come to the questions. On the basis of Thomson model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole. According to Thomson's model, number of proton equal to number of electrons. So as a whole atom will be neutral. Question number 2. On the basis of Rutherford model of an atom, which subatomic particle is present inside the nucleus of an atom? It is proton, क्योंकि न्यूट्रॉन की रदरफोर्ड के टाइम तक डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, इसलिए you will give the answer only proton.
थर्ड, ड्रॉ स्केच ऑफ बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। तो जैसा मैंने भी आपको बताया था, आप इसमें एन शेल ड्रॉ नहीं करेंगे, KLM शेल के साथ ही आप बोर्ड्स मॉडल ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? So very important observation or very interesting question is that gold is highly malleable. Even then Rutherford could prepare 1000 atom thickness gold foil. लेकिन अगर हम गोल्ड के अलावा कोई दूसरा मेटल लेते हैं जिसकी मेलेबिलिटी इतनी नहीं होती, तो ओबियस है कि वो फॉइल थिक होगी और रिटर्निंग बैक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को देने के साथ साथ एक स्पेशल बात ये कही थी कि आफ्टर द कैलकुलेशन जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का किया था, ही सेड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट आई कैलकुलेटेड दैट सम या एनी massive particle also present along with proton inside the nucleus. This massive particle has no charge but has mass, right? So on the basis of this hypothesis, Chadwick discovered this neutron. He bombarded beryllium foil 4Be9 with alpha particles, that is 2He4, and he got 6C12 carbon particle, one new particle 0 and 1, and he said this is neutron. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, जो रिएक्शन मैंने आपको बताया है ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ही न्यूक्लियस चेंज हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा है डाल्टन्स की थ्योरी में कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये केवल किस में पॉसिबल है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद चैडविक ने न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, दैट इज 0 चार्ज होता है, 1 यूनिट मास होता है और ये मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसा ऑलरेडी रदरफोर्ड ने अपने असम्पशन में कहा था। Now come to the questions. Name the 3 subatomic particles of an atom. So they become electron, proton and neutron. Question number 2. Helium atom has an atomic mass of 4 unit and 2 protons inside the nucleus. How many neutrons were there? तो आपने अभी पढ़ा है कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो अगर न्यूक्लियस का मास या एटॉमिक मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, तो हम पूरा मास जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से ही डिसाइड करते हैं। एटॉम का पूरा मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से डिसाइड करते हैं। तो अगर एटॉमिक मास 4 यूनिट है जिसमें से 2 प्रोटॉन है, तो रेस्ट 2 जो है वो न्यूट्रॉन्स होंगे। सो इन द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? इट हैज 2 neutrons. Now how are electrons distributed in different orbits shell? Number 1, electron distribution in increasing order of the energy of the orbit, and this is known as electronic configuration. तो इसके अकॉर्डिंग फिलिंग जो शुरू होगी वो n = 1 से लेकर आगे तक शुरू होगी, यानी कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आप किस में भरेंगे? n = 1 में, फिर n = 2 में, फिर n = 3 में। इस तरह से स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। एंड चूंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, E1, E2, E3 एंड E4, एनर्जी सबसे कम किसकी है? E1 की। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आएगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। सेकेंड रूल है कि किसी भी ऑर्बिट की कैपेसिटी हम फॉर्मूला 2n² से डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब n = 1 में 2 × 1² केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n = मैक्सिमम, कम रह सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, और 2 × 2² यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं केवल सेकेंड ऑर्बिट में, इससे ज़्यादा नहीं। n = 3 में मैक्सिमम 2 × 3² यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। n = 4 में मैक्सिमम 2 × 4² यानी कि ओनली 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। अब आप एक और इसमें रूल आपको याद करना है कि लास्ट ऑर्बिट कैन नॉट रिटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। सो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे
तो हम इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते. इलेक्ट्रॉन आर नॉट एक्यूमुलेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर. अंदर की शेल्स जब तक नहीं भर जाएंगी तब तक बाहर की शेल में आप कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे. ठीक है, अंदर की सेल में इलेक्ट्रॉन जब आप पूरी उसकी कैपेसिटी फिलअप कर लेंगे तब उसके आउटर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यानी कि शेल्स में या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज फिलिंग होगी. सो यू प्रैक्टिस फॉर दैट. In the next class we will discuss the electronic configuration from atomic number 1 to atomic number 20. Thank you.